Hello students, today we are going to discuss about Unit 1, Chapter 2, Introduction to MS Office Tools. So now in this introduction, in this chapter, we are going to learn about Office Tools encompass a category of application software designed to streamline office related tasks. So here what is our focus? Here we are focusing on different types of office tools that are used in preparing different types of presentation, spreadsheet, software, etc. And we will discuss some of the office tools in details. So let's start our presentation with the help with the types of office tools. Word processor tool. So what we can do in Word? So in Word, we can create, format, manipulate and save text file also. हमें वर्ड क्या करके दे सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है. Beside this, the software can either run on hardware as well as desktop applications such as Microsoft Word. So hardware and software दोनों में Word काम करता है, जैसे Microsoft Word इसका एग्जाम्पल है. और on the other hand, it can also be cloud based such as Google Doc. मीन्स ये आप अगर इंस्टॉल करते हो तो Microsoft Word में काम करता है, अगर आपको क्लाउड बेस्ड वर्क करना है तो Google Doc में वो काम करता है. Certain examples of these are MS Word, WordPad and Google Doc. इससे क्या फीचर्स है, इसका फीचर्स क्या है कि आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट, यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट, यू कैन एडिट, स्टोर डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, you can insert image, clip chart, screenshot, watermark, and you can do the page formatting and so many things you can do in Word. With the practice you will learn so many features of the Word. So this is about Word. Now next important tool of Microsoft Office is presentation tool. This tool helps to use a break the information into a smaller part called slides. So this can be also be asked the smaller part. The tool helps the user to break the information into smaller part called what? Slides. Slides are basically small parts of a particular topic arranged on a different pages. Moreover, series of these slides representing an idea to audience is called presentation. So इससे हमें ऑडियंस को पता चलता है, इसको नॉर्मली हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी इजी वे. सो स्लाइड शो फीचर से हम ये बता सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं कि स्लाइड कैन कंटेन्स पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ, टेबल्स एक्सेट्रा. सो इसके एग्जांपल है एमएस पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स. ये क्लाउड बेस है और ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस है. Now spreadsheet, this software contains the data in the form of rows and column. The intersection of rows and column is called cell. ये भी एक important MCQ है कि इसको क्या बोलते हैं, कि जैसे intersection of rows and column को हम क्या बोल सकते हैं, cell बोल सकते हैं. They store the data and have various formulas which in turn helps to analyze, calculate and draw conclusions from the data. तो हमें इससे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. आपको एक्सेल बहुत ही काम आता है प्रैक्टिकल लाइफ में. अगर आप एक्सेल के बारे में जानते हो तो दैट मीन्स यू आर वन स्टेप अहेड इन योर जॉब और इन योर बिजनेस. हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सेल के ट्रिक फॉर्मूला सीखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, और उसके बाद आप अपने आप भी बहुत सारे एक्सेल फॉर्मूला लगा सकते हो. They also contains additional feature like graph, chart, 3D tables, etc. for effective results. Report presentation in thus quite easy considering these results. Certain examples are as follow: MS Excel, Google Sheets. ये MS Excel एंड गूगल सीट ये काम करता है. गूगल सीट वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है. नाउ फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट क्या है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, बहुत सारा कर सकते हो. यू कैन इंसर्ट ग्राफ, चार्ट, वेरी इजी वे. यू कैन क्रिएट, यू कैन फॉर्मेट द डेटा and you can enter. It is easy to enter data in cells. Logical comparison is also possible in Excel. So Excel is very effective and very useful. So we will focus more on Excel in this chapter. But let's overview of key Microsoft Office tools and their applications for Bachelor of Commerce students, and more than that also. If you are doing something else, then also you should know these are the office tools which you can use. लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या कर सकता है, उसका फीचर क्या है, अभी हमने पढ़ा
वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट क्रिएशन कर सकता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो उसको, तो राइटिंग रिपोर्ट, ऐसे असाइनमेंट, क्रिएटिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट में उसको यूज कर सकते हो। एक्सेल मीन्स उसका फीचर क्या है, स्प्रेडशीट, डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या कर सकता है आपके लिए, स्लाइड क्रिएट कर सकता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता है, और इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपना रिसर्च फाइंडिंग कर सकते हो, बिजनेस प्रपोजल को प्रेजेंट कर सकते हो, और क्लास में प्रेजेंटेशन करने के लिए भी उसको यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आप ईमेल, कैलेंडर, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हो, यहाँ पे मैनेजिंग कम्युनिकेशन, स्केड्यूलिंग, स्टडी एंड ग्रुप मीटिंग आप कर सकते हो। ये सारे आपको फीचर्स याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट टूल इज वेरी इफेक्टिव फॉर doing email, calendar, task management, etc. And if four options are given, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Outlook, so then your answer is Microsoft Outlook. Same way, what can we do with the help of Microsoft OneNote? You can take digital note taking and organizing, note taking during lecture and organizing study material, that is useful. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका फीचर, एंड आप एनालाइज बिजनेस डेटा, क्रिएटिंग डेटाबेस फॉर कोर्स वर्क, ये इसका फीचर है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्या कर सकता है, तो पब्लिकेशन, क्रिएटिंग डिजाइन, डिजाइनिंग फ्लायर, पोस्टर, न्यूज़लेटर फॉर कॉमर्स, कॉमर्स इवेंट, ये आप माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर से बना सकते हो, आप फ्लायर बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट टूल यूज करके। माइक्रोसॉफ्ट टीम में क्या कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, वीडियो मीटिंग्स कर सकते हो, जैसे आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट या डिस्कसिंग कोर्स वर्क रिमोटली, अगर बहुत अलग अलग जगह पे कोर्स वर्क को डिस्कस करना है या मीटिंग करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम इज वेरी इफेक्टिव। माइक्रोसॉफ्ट विजियो क्या कर सकता है, वो डायग्राम और फ्लो चार्ट बना सकता है आपके लिए। नाउ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का क्या कर सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, ट्रैकिंग, मैनेजिंग ग्रुप प्रोजेक्ट, ट्रैकिंग कोर्स वर्क, डेडलाइन एक्सेट्रा, ये सब कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, कोलैबोरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कोलैबोरेटिंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट, शेयरिंग रिसर्च मटेरियल, ये सब शेयर पॉइंट से कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्या कर सकता है आपके लिए, क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। स्टोरिंग एंड शेयरिंग स्टडी मटेरियल, एक्सेसिंग कोर्स वर्क एनीवेयर, दिस इज पॉसिबल थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हुआ, जैसे सबसे अलग क्या हुआ, विजियो क्या कर सकता है, डायग्राम, फ्लो चार्ट कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्या कर सकता है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है। देन टीम से क्या कर सकते हो आप, मीटिंग कर सकते हो। देन वन नोट से क्या कर सकते हो आप, नोट टेकिंग एंड इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वन नोट। तो ये सब अलग है, जैसे आपको सिर्फ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये इसके बारे में पता होता है ज्यादातर, पर ये सारे और भी माइक्रोसॉफ्ट टूल है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू आल्सो। नाउ यहाँ पे एक एक्सेल सीट दिया है जिसमें आपको ये सब फाइंड आउट करना है कि टोटल, एवरेज, परसेंटेज। तो हम इसको प्रैक्टिकली, मैं आपको जस्ट इसका फॉर्मूला बता दूंगा और आपको अपने आप इसका प्रैक्टिस करना है। आपको अगर ये सीट चाहिए तो लास्ट में मैं आपको एक क्यूआर कोड दूंगा, वो अगर आप स्कैन करोगे तो पूरा आपके लिए ये सीट जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो फॉर्मूला लगा के। बट पहले आपको ये फॉर्मूला अपने आप सोचना है। ये पहला सीट था, जो आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये हाइपोथेटिकली डेटा क्रिएट किया गया है, जैसे यहाँ पे इतना डेटा प्रोवाइड किया है आपको, और उसके बेसिस पे से ये सब आपको फाइंड आउट करना है। टोटल फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, इज इक्वल टू सम C2 Z2। इस तरह से आप लगाओगे तो ये टोटल आपको मिल जाएगा। एवरेज फाइंड आउट करना है तो आपको किस तरह से ये फॉर्मूला लगाओगे, तो एवरेज के लिए आपको देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखो ये वाला एवरेज का फॉर्मूला आपको यहाँ पे फोकस करना है कि इज इक्वल टू एवरेज C2 Z2। अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो ये हमने टोटल जो था उसको 500 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज 5 सब्जेक्ट्स आर देयर, उस तरह से आपको परसेंटेज ध्यान में आ गया। और यहाँ पे देख लेना आपको ये परसेंटेज का कॉलम ऑन होना चाहिए तो आपको परसेंटेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। पास फेल है, जैसे यहाँ पे पास और फेल जानना है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इफ एंड। ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको पास और फेल जानना है, क्योंकि पास तभी हो सकता है, आपने क्या फॉर्मूला रखा है यहाँ कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में 40 से कम है तो वो फेल माना जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे पास और फेल का रिजल्ट आ जाएगा।
और डिस्टिंक्शन, सेकेंड क्लास, पास क्लास, ऐसा एक फॉर्मूला लगा है। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो कि इफ J2 is greater than or equal to 80%, then person is outstanding है उसका रिजल्ट, अदरवाइज फेल है। यहाँ पे भी आपको देखो इफ एंड वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे इफ वाला फॉर्मूला है, लॉजिकल फॉर्मूला है ये सब। और सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम अगर मार्क्स जानना है तो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्स, आपको ये भी याद रखना है। तो कोई एमसीक्यू के पर्पस के लिए भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको पास फेल का स्टेटस जानना है तो लॉजिकल फॉर्मूला लगा सकते हो। मिनिमम कब यूज होता है, मैक्सिमम क्यों कब यूज होता है, एवरेज कब यूज होता है, ये सारा फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे मैक्स मैक्स का फॉर्मूला है, ये मिनिमम का फॉर्मूला है, एंड एवरेज फॉर्मूला। तो ये सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क, सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क एंड सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क, आपको यहाँ पे फोकस करना है। देखो ये वाला सारे आपको कॉलम में सब फॉर्मूला दिख रहे हैं, वहां पे आप फोकस करोगे तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ना उसी तरह से एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 में आपको एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करना था। ड्यू डेट क्या था, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, देखो यहाँ पे करंट डेट एंड डेट को ये स्प्लिट कर देना। आप जब भी एक्सरसाइज एक्सेल सीट देखो तो यहाँ पे ई डेट B3 एंड C3 इस तरह से जस्ट फॉर्मूला लगा के आपको ड्यू डेट मिल जाएगा। ये आपका करंट डेट है ना। और ये जो है आप जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपको ये मिलेगा कि आपका करंट डेट क्या है, फ्यूचर डेट क्या, आपको पूछेगा। देखो कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हो ना, इज इक्वल टू के साथ स्टार्ट होता है, और फिर आपको ई डेट जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला और टैप करके प्रेस कर दे, जैसे ही डेट टैप प्रेस करोगे तो आपको स्टार्ट डेट एंड मंथ पूछ रहा है। यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या है, तो आपका ये परचेज डेट, ये स्टार्ट डेट बन जाएगा। और मंथ है यहाँ पे, तो कॉमा करके आपको जस्ट यहाँ पे कॉमा करना है, तो आप दूसरे मंथ के सिलेक्शन में चले जाओगे। तो जैसे ही मैं कॉमा करता हूँ, मेरे को पूछ रहा है मंथ कितने, तो यहाँ पे मैं मंथ पूछ रहा हूँ, तो मंथ करके ब्रैकेट क्लोज करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करोगे आपको ये फॉर्मूला ये मिल जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है। देखो अगर डेट के फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो ये थोड़ा अलग तरीके से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनरल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको डेट के फॉर्म में, अगर आपको लॉन्ग डेट रखना है तो ये लॉन्ग डेट आ जाएगा, अगर आपको शॉर्ट डेट रखना है तो शॉर्ट डेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से तो आप समझो, पहले कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा उसको इज इक्वल टू से स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे दूसरा है, देखो कितना डेज है, तो यहाँ पे हमने डेज लेफ्ट फाइंड आउट किया, तो हमने क्या किया है यहाँ पे इज इक्वल टू करके D3 मीन्स क्या है, ये वाला तुम्हारा D3 है। अब उसमें माइनस करके हमने ये करंट डेट है उसमें से ये माइनस करना है, और हमेशा इसमें से ही माइनस करना है, तो इसको हमें फिक्स करना है। तो देखो इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, डॉलर के साइन से। तो पहले आपको इज इक्वल टू करने का है, ये आपने करंट डेट सिलेक्ट किया, अब आपको माइनस करके यहाँ वाली ये वाली डेट को सिलेक्ट करना है। बट ये उसको फिक्स करने के लिए आपको है ना डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। डॉलर का साइन लगाने के लिए आपको फंक्शन F4 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही फंक्शन F4 प्रेस करोगे ये कॉलम फ्रीज हो जाएगा। अब ये कॉलम हटेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। आपको नॉर्मली एक्सेल में जैसे-जैसे नीचे जाते हो वो सेल नीचे-नीचे चला जाता है, बट यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया मीन्स अब ये आपका कॉलम फिक्स रहेगा। अगर आपको पूरा सेल फिक्स करना है तो ये डॉलर, अगर आपको कॉलम फिक्स करना है तो वापस एक बार प्रेस कर दोगे तो ये हो गया आपका रो फिक्स हो गया। 1 नंबर का जो रो है वो फिक्स हो गया। अगर आप वापस करोगे तो आपका ये जो बी कॉलम है वो फिक्स हो गया, और वापस कर दोगे तो वो हट जाएगा। तो इस फंक्शन F4 से ही ये सब होता है, और फंक्शन F4 वापस लगा दोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा, और आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको ये डेट मिल जाएगा कि कितना डेज लेफ्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बी डेट के फॉर्म में नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, तो मेरे को ये नंबर के फॉर्म में मिल जाएगा, और ये पॉइंट हटाना है तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो देखो आप इसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस हिसाब से आपको डेज लेफ्ट मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। नाउ एग्जांपल नंबर 3 में आपको ये पेरोल शीट बनाना है। तो यहाँ पे पेरोल में बेसिक दिया था बट डीए नहीं था, बट अलग अलग कंडीशन दिया है कि डीए कितना लेना है, 40% ऑफ बेसिक पे लेना है, टीए कितना लेना है, 10% ऑफ बेसिक पे लेना है, और 1000 विच एवर इज हायर। इस तरह से सब अलग अलग कंडीशन लेना है। आपको ये मटेरियल में पढ़ना है और उसके हिसाब से कंडीशन लगाना है। मैं आपको जस्ट एक्सेल में बताता हूँ। जैसे मेरे को डीए फाइंड आउट करना था और वो 40% था, तो मैंने इज इक्वल टू D2 इंटू 0.4 कर दिया और फिर उसको ड्रैग कर दिया। इज इक्वल टू लगाने से ही फॉर्मूला स्टार्ट करना है। जैसे मैक्सिमम यहाँ पे ऐसा लगा है कि इज इक्वल टू मैक्स D2 इंटू 0.1 यानी 10% करना है D2 का,
या तो बेसिक सैलरी का 10% या 1000, दोनों में से जो हायर है वो प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा देना। और यहाँ पे मैंने ऐसा लगाया फॉर्मूला कि यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि अगर मेरा C2 यानी C2 में आंसर ऑडिट है, यस है, यानी ऑडिट माने यानी C3 को मैंने लॉक किया है यहाँ पे कि अगर ऑडिट है तो उसको घर मिलना चाहिए, बाकी सब डिपार्टमेंट को नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन रखा है, तो मैंने इस तरह से कंडीशन रखा और C3 को डॉलर की साइन से लॉक कर दिया है। एचआरए में क्या करना है कि इफ माई G2 इज नो, अगर G2 नो है तो उसको एचआरए मिलना चाहिए, अगर G2 यस है तो एचआरए नहीं मिलना चाहिए, तो जीरो कर दिया। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा। और ग्रॉस मीन्स क्या, ये सारे टोटल कर देना है आपको। ये टोटल करोगे 1 2 3 एंड 4 का। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये टोटल सिंपल है, इज इक्वल टू सम D2 F2 तक कंटिन्यूस जाना है और H2 का प्लस करना है। प्रोफेशनल टैक्स मीन्स आपको D2 इंटू 12.5% ले लेना है। सॉरी, ये पीएफ है 12 D2 इंटू 12.5%। और प्रोफेशनल टैक्स के लिए एक बड़ा फॉर्मूला है कि अगर 5,999 से कम है, लॉजिकल फॉर्मूला लगा है, तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 8,999 है तो 80 टैक्स लगाना है। अगर 11,919 या उससे कम है तो 150, और सभी केस में, बाकी के सारे केस में 200 लगाना है। तो इस तरह से प्रोफेशनल टैक्स आ जाएगा। और फिर नेट मीन्स ये ग्रॉस सैलरी में से पीएफ एंड प्रोफेशनल टैक्स माइनस करोगे तो आपको नेट सैलरी मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मूला आपको यहाँ पे देख के अपने आप ट्राई करना है, ये सीट आपको मिल जाएगा। नाउ ये इनकम टैक्स चार्ज करना है कि इसका इनकम टैक्स कैसा है, ये इनकम है तो उसका इनकम टैक्स क्या है। तो इस तरह से इनकम टैक्स का एक फॉर्मूला लगाना है। इफ माय C2 इज 2,50,000 और बिलो देन जीरो इनकम टैक्स, इफ C2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। इस तरह से आपका ओल्ड स्कीम है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। यहाँ पे इनकम इतना नहीं है तो सरचार्ज मैंने जीरो कर दिया और फिर टोटल कर दिया। और यहाँ पे ये मैंने दूसरी बार भी करके दिखाया है, यही सेम फॉर्मूला है। आप जस्ट ये फॉर्मूला कॉपी करके भी लिख सकते हो, बट आप कॉपी करोगे तो आपको कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं। आपको ये अपने आप लिखना है, बनाना है, याद रखना है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आपको एक्सेल हमेशा हेल्प करता है। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगता हो, इफ लगते हो, तो आपको लॉजिक वन नंबर टू ये पूछता है और आपको उस हिसाब से आपको लिखते जाना है। आपको प्रॉम्प्ट देगा, वो प्रॉम्प्ट को आपको जस्ट फॉलो करना है। और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने दे तो दिया है, जिससे आप, जिसकी मदद से आप आराम से काम कर सकते हो। फिर ये एग्जांपल नंबर 5 है। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पीएमटी हमें क्या करके देता है। तो आपको ये याद रखना है एमसीक्यू पर्पस के लिए भी और क्वेश्चन पर्पस के लिए भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पीएमटी क्या करता है, कि कैलकुलेट करके देता है आपको पेमेंट ऑफ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। और उसका फॉर्मूला क्या है, देखो यही फॉर्मूला हमने वहां पे भी लगाया है। इज इक्वल टू पीएमटी रेट एनपीईआर पीवीएफपी एंड टाइप। पीपीएमटी अगर आपको प्रिंसिपल, जैसे कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट जा रहा है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये वाला पीपीएमटी का फॉर्मूला याद यूज करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला ये है जो आपको याद करना पड़ेगा। फिर अगर आपको वो पर्टिकुलर लोन अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में के इंटरेस्ट कितना है अगर वो जानना है तो आईपीएमटी फॉर्मूला यूज होता है। और आईपीएमटी का फॉर्मूला ये होता है, आपको ये याद रखना होता है। रेट जानना है पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और रेट का फॉर्मूला भी इस तरह से ही है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ज्यादा फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं है। जैसे पीएमटी में एनपीआर था और पीवी था, यहाँ पे पीपीएमटी और आईपीएमटी में पहले पीईआर आता है और फिर एनपीआर आता है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू जानना है, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू जानना है ऑफन बेस्ड ऑन पीरियोडिक एंड कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, तो आपको इस तरह से फ्यूचर वैल्यू का अ, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसमें सिर्फ F इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, रेट, एनपीआर, पीएमटी ये करना है और पीवी और टाइप करना है। देखो फ्यूचर वैल्यू है तो पीवी यहाँ पे आएगा, और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है तो पीवी पहले आएगा और फ्यूचर वैल्यू बाद में आएगा। वही फर्क है बस, बाकी कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू जानना है बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, तो ये सारे फॉर्मूला आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, व्हाट इज द रेट फॉर्मूला, व्हाट इज आईपीएमटी फॉर्मूला, व्हाट इज पीपीएमटी फॉर्मूला, और ये किस लिए यूज होता है। बहुत कुछ, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट पे कितना इंस्टॉलमेंट जानना जाएगा, उसके लिए पीएमटी फॉर्मूला है।
उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है वो जानना है तो पीपीएमटी यूज होता है, उसमें इंटरेस्ट कितना है तो आईपीएमटी, रेट कितना है तो आपको रेट फॉर्मूला जानना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू जानना है तो एफपी वाला फॉर्मूला, एंड पीवी प्रेजेंट वैल्यू जानना है तो प्रेजेंट वैल्यू। बस यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि एनपीआर एनपीआर आता है और रेट में हमेशा रेट तो पहले ही आ जाता है, तो सभी केस में रेट पहले आता है, आप इतना याद रखना। और एनपीआर आता है, खाली पीपीएमटी आईपीएमटी में पीईआर पीईआर के बाद एनपीआर आता है। ये सबका मतलब समझ लेते हैं कि रेट मीन्स वो इंटरेस्ट रेट बताता है, एनपीआर का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, मीन्स आप कितने, जैसे एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट है और आप 3 साल तक पेमेंट कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड इज 36। प्रेजेंट वैल्यू पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर एफई का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू और कैश बैलेंस आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज मेड। टाइप मीन्स व्हाट, ये ऑप्शनल होता है। द टाइमिंग ऑफ पेमेंट 0 फॉर द एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये भी आपको याद रखना है कि 0 मीन्स एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 मीन्स क्या है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। पीईआर का मतलब क्या होता है, द पीरियड फॉर विच यू वांट टू फाइंड द पेमेंट इन पीपीएमटी एंड आईपीएमटी फंक्शंस, मीन्स आप कितने पीरियड के लिए, 3 इयर्स 4 इयर्स, किसके लिए, कितने पीरियड के लिए आप पीपीएमटी और आईपीएमटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। और पीएमटी, द पेमेंट मेड ईच पीरियड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एन्युइटी, पूरे एन्युइटी में ये कांस्टेंट रहता है। तो देखो इस तरह से इसके बेस पे 7 एग्जांपल है। यू कैन गेट रुपीज 5 lakh in 3 years time by investing certain amount on monthly basis at 7% per annum. Find out the monthly investment amount. आपको अगर 5 लाख चाहिए 3 साल में 7% इंटरेस्ट पे अगर आप रखना है तो हर महीने आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स है, टाइम फिक्स है और कितना अमाउंट चाहिए वो आपको फिक्स है, और आपको हर महीने कितना पे करना पड़ेगा वो ढूंढना है। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला, देखो यहाँ पे पीएमडी का 7% डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 मंथ 12 आएगा, 3 इंटू 12 3 साल में चाहिए, और ये 7% को आपने मल्टीप्लाई से यानी किया है डिवाइड, और यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला दिखाएगा। देखो यहाँ पे जैसे लिखोगे पीएमटी इज इक्वल टू रेट, एनपीआर, पीवी, एफई, टाइप, ये सब आपको पूछता जाएगा कि रेट क्या है, 7% डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 मंथ्स में आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाला है। 3 मल्टीप्लाई बाई 12 मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड है, एंड पीवी प्रेजेंट वैल्यू 0 है, फ्यूचर वैल्यू आपका -5 लाख। अगर यहाँ पे 5 लाख लिखोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और 5 लाख लिखोगे तो पॉजिटिव में आएगा, बराबर। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी से ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप 1000 डिपॉजिट करते हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ in an account earning 1% per month, how much will I have after 2 years? तो ये सिंपल है कि अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको फ्यूचर वैल्यू जानना है कि 1% पर मंथ। अब इसको 12 से डिवाइड करना जरूरी नहीं है क्योंकि पर मंथ का ही रेट दिया है, 2 इंटू 12, क्योंकि ये आपको फ्यूचर वैल्यू जैसे आप लिखोगे तो ये फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा। ये -1000 चाहिए आपको, 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, और 0 प्रेजेंट वैल्यू एंड टाइप 1 है आपको। टाइप 1 का मैंने आपको बताया था कि 1 कब लिखना है आपको और 2 0 कब लिखना है, 1 फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो आपको जैसे ही लिखोगे तो आपको 2 इयर्स के बाद अगर 1000 इन्वेस्ट करते हो तो इतना अमाउंट मिल जाएगा 27,243.60। इसी तरह से ये वाला थर्ड सम है, इफ यू डिपॉजिट 1 लाख विद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ढूंढना है, 8 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 लाख अभी इन्वेस्ट करोगे तो 8 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितना मिलेगा तो वो ढूंढना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, सिंपल, ये सिंपल फॉर्मूला है, आप कोई और फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट वन, इफ द प्रीवियस डिपॉजिट फॉलोस एमआईएस देन हाउ मच अमाउंट विल यू रिसीव एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मीन्स एमआईएस फॉलो करता है तो अगर आपको इसमें कितना अमाउंट एवरी मंथ मिलेगा, यानी कितना, हाउ मच अमाउंट विल यू रिसीव एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अगर एमआईएस फॉलो करते हो तो इतना आपको एट द एंड ऑफ ईच मंथ मिलेगा। फिर फिफ्थ में आपको ये पूछा है कि इन एवरी एमआईएस फाइंड आउट हाउ मच is paid back as a principal interest separately. Summation of the principal part would be rupees 1 lakh and summation of interest part would be 27,329.56। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट करोगे तो आपको इंटरेस्ट ये सब मिलेगा। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज है, आप जस्ट ये क्वेश्चन टाइप करके देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारी चीज आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इजी है ये। अगर आपको ग्राफ यानी एग्जांपल नंबर 6 ग्राफ ये ड्रॉ करना है ये डेटा के बेस पे, तो बहुत सिंपल है। जैसे आपको जस्ट ये सिलेक्ट करना है डेटा,
इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके आपको ग्राफ सिलेक्ट करना है, जो भी ग्राफ आपको लेना है, या रिकमेंडेड चार्ट्स में भी जा सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे ग्राफ्स में ये वाला ग्राफ लेना है, तो मैं जैसे ही ये क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर उसका मेरे को डिज़ाइन चेंज करना है, तो ये जैसे डिज़ाइन चेंज करना है तो डिज़ाइन, बहुत आसानी से आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया था कि जिसके वजह से आपको मेल मर्ज क्रिएट करना है। तो ये सारे स्टेप्स आप जैसे मेल मर्ज करना है, तो आप मेल मर्ज कर का फायदा है, देखो ये सारी मैंने एक्सेल शीट बता दी आपको, पहले ये समझ लो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ तक पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है तो इस तरह से आप पाई चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ डेटा आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। डेटा आप जस्ट सिलेक्ट करोगे तो ये चला, जैसे मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया तो उसके फिर इंसर्ट में जाके पाई चार्ट करना है बस। और ये असाइनमेंट में मेल मर्ज है, तो उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट मेल मर्ज करना पड़ेगा। जैसे मेल मर्ज से आप क्या कर सकते हो, क्या जैसे बहुत सारे यूनिक वेरिएबल है और सबके लिए एक ही ईमेल भेजना है, लेबल क्रिएट करना है अलग अलग लोगों के लिए, तो आप आराम से मेल मर्ज कर सकते हो। आपको डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, सोर्स सेटअप योर डेटा सोर्स, आपको डेटा सोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है, स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट योर डेटा सोर्स एंड इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड। बहुत आराम से आप लेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे मेल मर्ज करना है तो सबसे पहले वर्ड ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे मेलिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेलिंग सेलेक्ट करने के साथ आपको स्टार्ट मेल मर्ज करना पड़ेगा। जैसे मेल मर्ज में आपको करना क्या है, यहाँ पे लेटर करना है, ईमेल करना है, या एनवेलप बनाना है, लेबल बनाना है, या क्या बनाना है, इस तरह से आप जो भी आपको प्रिपेयर करना है वो आप बना सकते हो। यहाँ पे हम लेबल सिलेक्ट करते हैं, जैसे लेबल सिलेक्ट किया ये मेरा मेल मर्ज स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेरे को ये पूछेगा कि आपका ये मेल मर्ज है वो उसमें पेज प्रिंटर है, ट्रे है, कौन सा है, डिफॉल्ट ट्रे है। फिर आपको लेबल वेंडर लिखना बहुत जरूरी है कि आपके वो आपने जो भी जेरोक्स सेंटर से या कहीं से भी परचेस किया होगा वहाँ पे लेबल वेंडर्स का नाम लिखा होगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे प्रोडक्ट नंबर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। वो लिखा ही होता है पेज पे, उसके प्रोडक्ट प्रोडक्ट के पेज पे लिखा होता है, पैकेट पे लिखा होता है। जैसे आप सिलेक्ट कर दोगे आपका मेल मर्ज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट रेसिपिएंट करना है, फिर यहाँ पे आपको न्यू लिस्ट बनाना है या एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज करना है, जहाँ यहाँ पे मैं आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट सिर्फ यूज कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे ये पूछा कि आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे बताया डेटा फॉर लेबल्स में मेरा ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है, वो उसको मेरे को सिलेक्ट करना है। फिर मेरे को पूछेगा कि रो ऑफ द डेटा कॉलम हेडर है कि नहीं। आपको ये बहुत, जब भी मेल मर्ज करते हो तो आपका जो फर्स्ट रो ऑफ द डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर होना ही चाहिए, तो ही आप मेल मर्ज कर सकते हो। फर्स्ट रो में कुछ और नहीं होना चाहिए, उसको ओके चेक करके आपको ओके करना है, टिक मार्क करना है और फिर ओके कर देना है, सिंपल। अब सपोज कि यहाँ पे मेरे को नेम लिखना है तो मैं नेम लिख के उसको कर दूंगा। यहाँ पे नेम कॉमन है, फिक्स वेरिएबल है, तो उसको जैसे ही मैं फिक्स करूंगा तो यहाँ पे मेरा अपडेट लेबल हो जाएगा और सब में नेम आ जाएगा। देखो सब में नेम लिख के आ गया और उसका मेरे को अब वापस मेरे को यहाँ पे लिखना है, सपोज के नाम लिखना है कि यहाँ पे इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड करना है, तो यहाँ पे सपोज के नेम के बाजू में नेम आना चाहिए। तो जैसे मैं नेम के बाजू में नेम लिखूंगा तो मेरे को अपडेट लेबल्स करना जरूरी है, तो ही मेरे को सब में नेम आ जाएगा। तो देखो नेम नेक्स्ट रिकॉर्ड हो जाएगा नेम। अब इसको रिव्यू करना है तो आपको देखना है सारे वेरिएबल, देखो नेम सब में फिक्स रहा बट वेरिएबल नाम के हिसाब से बन गया अलग अलग। मैं आपको यहाँ पे देखे जैसे अलग अलग नाम बताया है, ऐसे रेंडमली सिलेक्ट किया है। वापस अगर आपको कोई मेल फील्ड अपडेट करना है तो ये प्रीव्यू रिजल्ट को बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे इंसर्ट, फिर सपोज के एड्रेस लिखना है तो यहाँ पे एड्रेस में आपको यहाँ पे जाके एड्रेस कर सकते हो और अपडेट लेबल्स करके सब में एड्रेस आ जाएगा। जो भी एड्रेस आपने सेव किया होगा वो यहाँ पे सब में आ जाएगा। देखो अलग अलग है एड्रेस, तो वो आ जाएगा। आप इसको सेट करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट करना चाहते हो, कुछ भी सेट करना चाहते हो तो ये होम में जाके आप सेट भी कर सकते हो, नो स्पेस कर सकते हो। फिर इसको सेंड अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, फॉन्ट साइज है वो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइम्स रोमन करके 12 करना है तो आप 12 कर सकते हो। फिर वापस मेलिंग में जाके उसको अपडेट लेबल करना है तो ये सब में हो जाएगा। उसके अंदर टेबल इंसर्ट करना है और प्रीव्यू रिजल्ट करोगे तो सब में वो प्रीव्यू रिजल्ट भी आ जाएगा। इस तरह से बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। तो ये असाइनमेंट था। आपको देखो यहाँ पे असाइनमेंट दिया, ये सारे असाइनमेंट आपको पूरा करना है।
और ये आप QR कोड स्कैन करोगे तो सारी एक्सेल शीट जो है वो आपको मिल जाएगा। Now thank you very much for watching my video till end. If you have any doubt, you can write down in a comment box. I will try to make reply for the same. Have a nice day. Bye.